ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ مرہا کے کہنے پر جو ہی اس شخص نے ماسک ہٹایا، مرہا پتھر ہو گئی۔ کاشان بھائی؟ وہ کاشان سکندر تھا جو 3 سال پہلے حادثے میں دماغی مریض ہو گیا تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ ان سب کے دوران اسے مرہا سے محبت ہو گئی تھی، جو اس سے 12 سال چھوٹی تھی اور اسے پاگل سمجھ کر اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، مقصد حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اسے اپنائے گا، پر اچانک اسے معلوم ہوا مرہا کی شادی اس کے چھوٹے بھائی سے طے ہو رہی ہے۔ وہ منزل کے اتنا قریب آ کر بھی سب کے سامنے اپنی اصلیت نہیں کھول سکتا تھا۔ جب ہی رات کی تاریکی میں ایک گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک وہ بے قابو ہوئی، سڑک سے اتری اور کئی بار الٹتی چلی گئی۔ بریک کی چیختی آواز، شیشوں کے ٹوٹنے کی کھنک اور دھات کے ٹکرانے کی گونج سنسان سڑک پر خوفناک ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حادثے کی شدت سے گاڑی کا دروازہ ٹوٹ گیا اور ایک خون میں لت پت بازو باہر کی طرف لٹک گیا۔ چہرہ بھی لہو سے بھرا ہوا تھا، مگر اندھیرے میں کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آس پاس مکمل سناٹا تھا، کوئی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ وہ شخص بے ہوش تھا یا موت کے قریب، یہ جاننا مشکل تھا۔ کچھ وقت اسی بے حسی میں گزر گیا، یہاں تک کہ ایک گاڑی وہاں سے گزری۔ ڈرائیور کی نظر سڑک کے کنارے تباہ شدہ گاڑی اور باہر لٹکے جسم پر پڑی تو اس نے فوراً بریک لگا دی۔ یہ کوئی حادثہ لگتا ہے، ساتھ بیٹھے شخص نے بے ساختہ کہا۔ وہ فوراً باہر نکلے اور زخمی شخص کی طرف لپکے۔ بڑی مشکل سے اسے گاڑی سے باہر نکالا، مگر وہ شدید زخمی تھا۔ اس کی نبض کمزور تھی، مگر وہ زندہ تھا۔ جلدی سے اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے اس کی جیپ کی تلاشی لی تو ایک کارڈ ملا جس پر ایک نمبر درج تھا۔ انہوں نے فوراً اس نمبر پر کال ملا دی۔ ہمدانی ہاؤس۔ حال میں ہمدانی صاحب اپنے بھائی مصطفیٰ اور چند دیگر افراد کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک فون بجا۔ ہمدانی صاحب نے فون اٹھایا، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اب اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ کس کا فون تھا؟ مصطفیٰ صاحب جو قریب ہی بیٹھے تھے فوراً گھبرا کر بولے۔ ہمدانی صاحب نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، کاشان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت اسپتال میں ہے، ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مصطفیٰ صاحب کے چہرے پر بھی حیرت اور تشویش پھیل گئی۔ دونوں بغیر کسی تاخیر کے فوراً اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب تیز قدموں سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ان کے دل میں بے شمار خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ ہیلو میم، ادھر ابھی ایک مریض آیا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کے پوچھنے پر اس لڑکی نے کہا، ہاں جی، ابھی ادھر ایک کیس آیا تو ہے۔ کاشان کہاں ہے؟ ہمدانی صاحب نے بے چینی سے ریسیپشن پر موجود نرس سے پوچھا۔ مریض ابھی آپریشن تھیٹر میں ہے، ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں، نرس نے رسمی لہجے میں جواب دیا۔ کیا زخم بہت شدید ہیں؟ مصطفیٰ صاحب نے جلدی سے پوچھا۔ نرس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ داخلی چوٹیں زیادہ ہیں، خاص طور پر سر پر۔ ہمیں حتمی طور پر کچھ کہنے کے لیے آپریشن مکمل ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ سن کر ہمدانی صاحب بے اختیار کرسی پر بیٹھ گئے، جبکہ مصطفیٰ صاحب پریشانی سے کمرے میں چکر لگانے لگے۔ چند گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ کاشان اب کیسا ہے؟ ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب ایک ساتھ بولے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، کاشان کی حالت ابھی نازک ہے، لیکن خوش قسمتی سے جان بچ گئی ہے۔ شکر ہے۔ ہمدانی صاحب نے گہری سانس لی۔ مگر ڈاکٹر نے ایک عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟
मुस्तफ़ा साहब ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, हादसे के बायस उसके दिमाग पर चोट आई है। अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, मगर हमें खदशा है कि वक्ती तौर पर वो याददाश्त खो सकता है या शायद ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर हो सकता है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद काशान को होश आया तो मुस्तफ़ा साहब और हमदानी साहब फौरन कमरे में पहुंचे, मगर जो मंजर उन्होंने देखा वो उनकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा खौफनाक था। काशान जैसे ही आंखें खोलकर होश में आया तो उसकी नजरें बेचैनी से इधर उधर भटकने लगी। अगले ही लम्हे वो घबराकर चीखने चिल्लाने लगा, जैसे किसी भयानक ख्वाब में कैद हो। उसके चेहरे पर वहशत थी, आंखों में अजीब सी वहशियाना चमक, और उसके लबों से निकलने वाली बेरब्त चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर अचानक वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हो। ये सब देखकर मुस्तफ़ा साहब और हमदानी साहब के चेहरों पर एक तारीक साया लहरा गया। वो बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे अल्फाज खो चुके हों। डॉक्टरों ने फौरन आगे बढ़कर काशान को संभालने की कोशिश की, मगर वो मुसलसल मज़ाहमत करता रहा। आखिरकार एक डॉक्टर ने सकून और इंजेक्शन तैयार किया और बड़ी मुश्किल से उसे काशान के बाजू में लगा दिया। चंद ही लम्हों में उसका बदन ढीला पड़ गया और वो बेसुध होकर दोबारा नींद की आगोश में चला गया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और हमदानी साहब की तरफ मुतवज्जो होकर संजीदगी से कहा, मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि आप इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें। इसकी जहनी हालत बहुत नाजुक लग रही है। अगर मुनासिब इलाज ना मिला तो मामला बिगड़ सकता है। ये सुनकर हमदानी साहब की पेशानी पर शिकने उभरी। वो लम्हा भर के लिए खामोश रहे, फिर गहरी सोच में डूबे लहजे में बोले, हम इसे पहले घर ले जाएंगे, फिर सूरत हाल देखकर कोई फैसला करेंगे। डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में तशवीश वाज़ेह थी। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप जल्द अज जल्द किसी माहिर नफ्सियात के सुपुर्द कर दें। मुस्तफ़ा साहब जो अब तक खामोश खड़े थे, आखिरकार बोले, हम इसे कब तक घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर ने एक नज़र काशान की तरफ डाली और संजीदगी से कहा, अभी नहीं, इसके ऑपरेशन को सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, इसीलिए इसे मज़ीद एक दिन ज़ेरे निगरानी रखना होगा। कल शाम तक इसकी हालत मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी, तब हम इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। हमदानी साहब ने गहरी सांस लेकर सर हिलाया, ठीक है, हम कल शाम इसे ले जाएंगे। मुस्तफ़ा साहब और हमदानी साहब के चेहरे पर कशमकश के साए थे। उन्हें मालूम था कि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। अगले दिन हमदानी साहब और मुस्तफ़ा साहब काशान के डिस्चार्ज के कागजात हाथ में लिए संजीदगी से उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर दाखिल होते ही उनकी नज़रें काशान पर जा टिकी, जो बेहिस्सो हरकत बेड पर बैठा था। उसकी आंखें खला में घूर रही थीं। चेहरे पर अजनबी सी सख्ती थी, जिसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो। काशान बेटा, कैसा महसूस कर रहे हो? हमदानी साहब ने धीरे से पूछा। काशान ने आहिस्ता से नजरें उठाईं, मगर उसके तासुरात में कोई शनासाई नहीं थी। हम घर जा रहे हैं, मुस्तफ़ा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर काशान ने कोई जवाब नहीं दिया। नर्स ने आहिस्ता से आगे बढ़कर कहा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके रवैये में तब्दीली किसी भी वक्त आ सकती है। हमदानी साहब ने सर हिलाकर नर्स का शुक्रिया अदा किया और फिर काशान को सहारा देकर खड़ा किया। वो बगैर किसी मज़ाहमत के खामोशी से चलने लगा, जैसे कोई खुदकार मशीन हो। जैसे ही वो लोग गाड़ी के करीब पहुंचे, काशान अचानक घबराकर चीखने चिल्लाने लगा। उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां थे, आंखें वहशत ज़दा थीं और वो मुसलसल पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मैं इसमें नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाना चाहता, वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। हमदानी साहब और मुस्तफ़ा साहब ने फौरन आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह मज़ाहमत कर रहा था।
उसका बदन कांप रहा था, माथे पर पसीने के कतरे नमोदार हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी को देखते ही उसके जहन में हादसे की याद ताज़ा हो गई हो। बड़ी मुश्किल से दोनों ने उसे काबू किया और किसी न किसी तरह गाड़ी में बिठा दिया, लेकिन काशान अब भी खौफजदा था। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और वो बार बार पीछे मुड़कर गाड़ी के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी भी लम्हे वहां से निकलकर भागने की कोशिश करेगा। हवेली पहुंचने पर जैसे ही गाड़ी हवेली के दरवाजे पर रुकी, घर की खवातीन फौरन बाहर आ गईं। सबकी नजरें बेचैनी से काशान पर थीं, जो मुस्तफा साहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। ये क्या हो गया काशान को? नौरीन बेगम, जो कि हमदानी साहब की बीवी थीं, हैरानगी से बोली। काशान के इस अजीब रद्द अमल पर सब उलझन में पड़ गए। वो जो हमेशा संजीदा और मजबूत रहता था, आज किसी सहमी हुई रूह की तरह लग रहा था। मुस्तफा साहब ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में बोले, काशान अब पहले जैसा नहीं रहा, इसकी जहनी हालत बिगड़ चुकी है। ये सुनते ही सब घबरा गए। ये सब कैसे हुआ? नौरीन बेगम ने बेचैनी से पूछा। हमदानी साहब ने सबको हादसे की तफसीलात बताईं, फिर अफसोस भरे लहजे में बोले, अब पता नहीं काशान कब ठीक होगा, या होगा भी या नहीं। फिजा पर खामोशी छा गई। काशान को उसके कमरे में ले जाया गया। वो अब भी नढाल था और किसी से बात करने के बजाय बस दीवारों को घूर रहा था। कुछ ही देर बाद उसे दवा खिलाकर सुला दिया गया। कुछ दिन तक सबने मिलकर काशान का बहुत ख्याल रखा, मगर अब वो सब थक चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ से लापरवाह होते जा रहे थे और काशान खुद भी किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। जैसे ही कोई उसके पास आता, वो चीखने चिल्लाने लगता, जिसकी वजह से सबने उससे दूरी इख्तियार कर ली। इन सब में सिर्फ एक शख्स था जो अब भी उसका ख्याल रख रहा था, मिरहा। वही थी जो किसी न किसी तरह काशान को संभाल लेती थी। वो उसके खाने पीने से लेकर उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। और हैरत की बात यह थी कि काशान भी मिरहा के सिवा किसी और से कुछ नहीं लेता था। ना वो किसी और के हाथ से खाना खाता, ना ही किसी से बात करता, और ना ही किसी को अपने करीब आने देता। वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी सब ने भी कोशिश करना छोड़ दी। अब वो उसके बारे में सिर्फ आपस में बातें करते। आखिर कोई पागल को इतना अरसा कैसे संभाल सकता है? पता नहीं हमदानी साहब और मुस्तफ़ा साहब उसे पागल खाने क्यों नहीं भेज देते। लेकिन मिरहा को अपने बाबा और चचा का फैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा। वो भी काशान को पागल खाने भेजने के हक में नहीं थी, इसीलिए उसने खुद ही उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना शुरू कर दिया, ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। काशान बिल्कुल खामोश रहता। वो ना किसी से बात करता और ना ही किसी चीज़ में दिलचस्पी लेता, और इसी वजह से सबने सुकून का सांस ले लिया। मगर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मिरहा अपनी दोस्त की शादी पर गई हुई थी और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी माँ खाने की प्लेट लेकर काशान के कमरे में आई। जैसे ही काशान ने उन्हें देखा, वो अचानक चीखने चिल्लाने लगा। उसने कमरे की हर चीज़ उठाकर इधर से उधर फेंकना शुरू कर दी और गुस्से से चिल्लाया, चली जाओ यहाँ से, मैंने खाना नहीं खाना। ये कहकर उसने खाने की प्लेट भी जोर से दीवार पर दे मारी। मिरहा की माँ का सब्र जवाब दे गया। गुस्से में आकर उसने काशान को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। काशान सहम कर एक कोने में बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बच्चों की तरह उन्हें साफ करने लगा। मिरहा की माँ गुस्से से बोली, अब भूखे रहो, ना मैं और ना ही कोई और तुम्हें खाने के लिए कुछ देगा। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। काशान खामोशी से वहीं बैठा रहा और आंसू उसके गालों पर बहते रहे। अगली सुबह मिरहा शादी से वापस आई तो घर में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, उसकी माँ ने झुंझुलाकर कहा, आखिर कब तक तुम इस पागल के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी?
कल रात से उसने ना कुछ खाया, ना किसी को अंदर आने दिया, बस कमरे में बंद बैठा है। मिरहा का दिल डूब गया। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर काशान के कमरे की तरफ लपकी। दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा काशान फर्श पर अकड़ों बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुआं धुआं लग रहा था। काशान भाई, वो नरमी से बोली, आपने कुछ खाया नहीं? मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूं। काशान ने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाईं। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी, मगर जैसे ही उसने मिरहा को देखा वो धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम आ गई? मैंने तुम्हें इतना सारा मिस किया। और पता, मुझे एक आंटी ने मारा भी। वो बच्चों की तरह मिरहा को घर वालों की शिकायतें लगा रहा था। फिर वो बोला, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी ना? अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, ठीक है? मिरहा ने हल्का सा कहकहा लगाया। हाँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही। काशान की मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मिरहा नाश्ता लेकर आई और अपने हाथों से काशान को खिलाने लगी। काशान खामोशी से खाता रहा, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ना हो। खाने के बाद मिरहा ने उसके बाल संवारने शुरू किए और वो सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर मिरहा ने उसे दवा दी और लेटा दिया ताकि वो आराम कर सके। जब वो बर्तन उठाकर कमरे से बाहर निकली तो उसकी मां सख्त गुस्से में उसे घूर रही थी। आखिर कब तक तुम इस पागल के साथ रहोगी? नौरीन बेगम ने गुस्से से कहा। अपने बाबा से कहकर इसे पागल खाने भिजवा दो। ये ना सिर्फ खुद पागल है बल्कि हमें भी पागल कर देगा। मिरहा ने मां की तरफ बेयकीनी से देखा और धीमे मगर मजबूत लहजे में बोली, मामा, वो किसी को कुछ नहीं कहता, बस अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। नौरीन बेगम ने तेजी से जवाब दिया, हाँ, जब तक तुम घर में हो वो बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन जैसे ही तुम किसी काम से बाहर जाती हो वो किसी को चैन नहीं लेने देता। जो भी उसके पास जाता है उसे मारने को दौड़ता है। हम कब तक उसे बर्दाश्त करें? बेहतर है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। मिरहा ने झुंझुलाकर मां की तरफ देखा और तलखी से बोली, जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो बेशक आप काशान भाई को पागल खाने भेज देना, लेकिन अभी वो कहीं नहीं जाएंगे। ये कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चली गई और उसकी मां और चच्ची एक दूसरे की तरफ देखने लगी। नौरीन बेगम की देवरानी सादिया बेगम, जो अब तक खामोश खड़ी थी, आहिस्ता से बोली, भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ सोचती हूं। किसी न किसी तरह इस पागल को इस घर से निकालना ही होगा। नौरीन बेगम ने सर हिलाते हुए सुख का सांस लिया और अपने कमरे में चली गई, जबकि सादिया बेगम वहीं खड़ी किसी गहरी सोच में गुम रही। फिर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। अगले दिन सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे जब सादिया बेगम ने बात का आगाज किया। मैंने अपने जानने वाले एक डॉक्टर से काशान के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा ऐसे मरीज को घर में रखना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा उसे किसी स्पेशल सेंटर में दाखिल करवा दिया जाए जहां उसकी मुनासिब देखभाल हो सके और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सुनकर मुस्तफ़ा साहब ने चौंक कर सादिया बेगम की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, ये तुम क्या कह रही हो सादिया? हम काशान को कैसे कहीं भेज सकते हैं? सादिया बेगम ने तहम्मुल से जवाब दिया, भाई साहब, मुझे मालूम है कि आप काशान से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम भी तो उसी की भलाई के लिए बात कर रहे हैं। हम उसका बुरा नहीं चाहते। मुस्तफ़ा साहब गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने किसी को जवाब नहीं दिया और खामोशी से उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। नौरीन बेगम ने सादिया बेगम की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में इशारा किया, फिर फौरन मुस्तफ़ा साहब के पीछे चल दी। उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही कहा, मुझे लगता है सादिया बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खुद देखें, काशान किसी के काबू में नहीं आता, ना किसी से बात करता है, ना कुछ खाता है, और तो और किसी को अपने करीब भी नहीं आने देता।
आप कब तक उसे यूं घर में बिठा कर रखेंगे? उसे भी तो बाहर आना जाना होता है। अगर मिरहा को किसी वजह से 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ गया तो क्या आप काशान को भूखा रखेंगे? नहीं ना। इसीलिए बेहतर यही होगा हम उसे किसी स्पेशल सेंटर में भेज दें जहां उसका ख्याल रखा जा सके। नौरीन बेगम की बात सुनकर मुस्तफ़ा साहब ने गहरी सांस ली। कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, अगर सबका यही फैसला है तो मैं कल किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके काशान को किसी मेंटल हेल्थ सेंटर में दाखिल करा दूंगा जहां उसकी मुनासिब देखभाल हो सके। हमदानी साहब के ये अल्फाज सुनते ही नौरीन बेगम के चेहरे पर एक पुरसकून भरी मुस्कुराहट आई जिसमें शैतानी चमक थी। वो नीचे आई और खुशी खुशी सादिया बेगम को ये खबर सुनाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सादिया, तुमने मेरी बेटी की जान इस पागल से छुड़वा दी। सादिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप बिला वजह फिक्र कर रही थी। मैंने कहा था ना उसे इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। देख लें, भाई साहब भी मान गए हैं। अब बहुत जल्द हमारी उससे जान छूट जाएगी। ये कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अगले ही दिन हमदानी साहब ने काशान को एक स्पेशल सेंटर में दाखिल करवा दिया। ये सेंटर खास तौर पर ऐसे मरीजों के लिए बनाया गया था जहां उनका बच्चों की तरह ख्याल रखा जाता और उन्हें नरमी और मोहब्बत से संभाला जाता था। काशान को ये सब कुछ इंतहाई नागवार गुजरा। जैसे ही उसे वहां ले जाने लगे उसने शदीद हंगामा खड़ा कर दिया। वो गुस्से में आकर सब लोगों पर झपट पड़ा और सबको मारने के लिए दौड़ने लगा। लेकिन हमदानी साहब पहले से ही इस सूरत हाल के लिए तैयार थे। उन्होंने फौरन मिरहा की तरफ देखा और कहा, मिरहा, तुम इसे संभाल सकती हो, तुम भी हमारे साथ अस्पताल तक चलो। मिरहा मजबूरन उनके साथ चल दी। जब वो काशान के कमरे में पहुंची तो उसने नरमी से कहा, काशान भाई, देखिए मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप यहां किसी को तंग नहीं करेंगे और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं जल्द कोशिश करके आपको यहां से ले जाऊंगी, बस आपको सब्र करना होगा। काशान, जो अब तक गुस्से में था, मिरहा की बातें सुनते ही खामोश हो गया। वो एक बच्चे की तरह मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगा। मिरहा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नरमी से कहा, वादा करें मुझसे? काशान ने झिझकते हुए अपने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम लिया और धीमे लहजे में बोला, ठीक है, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझसे मिलने आती रहोगी ना? मिरहा ने मुस्कुराते हुए हल्के से सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं हर वीकेंड पर तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन अगर तुमने किसी को तंग किया या किसी को नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगी। ये सुनते ही काशान जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम मुझसे मिलने आया करना। मिरहा ने नरमी से कहा, ठीक है, चलो अब मैं चलती हूं और तुम अच्छे बच्चों की तरह लेट जाओ। मिरहा की बात सुनते ही काशान फौरन बेड पर लेट गया, जैसे कोई मासूम बच्चा मां की हिदायत मान रहा हो। मिरहा ने एक नज़र उस पर डाली। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था, लेकिन वो जब्त करके कमरे से बाहर निकल गई। मिरहा के जाते ही काशान दोबारा उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में उदासी थी। वो खाली नजरों से दरवाजे को तकता रहा जहां से अभी मिरहा निकली थी। काशान ने स्पेशल सेंटर में किसी किस्म का हंगामा नहीं किया, ना ही किसी को तंग किया। जैसे जैसे डॉक्टर्स उसे हिदायत देते वो वैसे वैसे करता। ये बात सबके लिए हैरान कुन थी, क्योंकि जब उसे लाया गया था तो सबको लगा था उसे काबू में रखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश और पुरसकून था। डॉक्टर्स के लिए ये खुश आइंद था, इसीलिए वो बगैर किसी रुकावट के उसे मेडिसिन देते रहे और उसका इलाज जारी रखा। उन्हीं दिनों मिरहा की मंगनी काशान के छोटे भाई से हो गई। जब वो काशान से मिलने आई तो खुशी से चहकने लगी। काशान भाई, आपको पता है मेरी मंगनी हो गई है, और वो भी आपके छोटे भाई से। ये सुनते ही काशान चौंक गया
उसने हैरत से मिरहा की तरफ देखा, जैसे कुछ लम्हे तक वो इस खबर को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट फैल गई। वाकई तो मुझे अपनी शादी पर बुलाओगी ना? कितना मजा आएगा, बहुत सारे खाने होंगे और मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा। मिरहा ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगी अपनी शादी पर। ये सुनकर काशान खुशी से तालियां बजाने लगा और बोला, तुम बहुत अच्छी हो मिरहा। दोनों कुछ देर मजीद इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मिरहा उठ खड़ी हुई। अच्छा अब मैं चलती हूँ काशान भाई, अगली बार फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, ठीक है? काशान ने सर हिला दिया। लेकिन जैसे ही मिरहा दरवाजे से निकली, उसकी आंखों में उदासी उतर आई। वो खामोशी से दीवार को तकता रह गया, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मिरहा जैसे ही स्पेशल सेंटर से बाहर निकली, उसके कदम हल्के हल्के रास्ते पर बढ़ने लगे। लेकिन वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। मिरहा ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन बेहोशी की दवा का असर तेजी से हो रहा था। चंद ही लम्हों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। गाड़ी के दरवाजे की आवाज आई। किसी ने उसे अंदर धकेला और गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। मिरहा को जब होश आया तो उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश की। उसकी आंखें बमुश्किल खुल रही थीं। मिरहा का जहन बारी हो रहा था। जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सर में शदीद दर्द की लहर दौड़ गई। कमरे में इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा जैसे उसके हाथ बंधे हुए हैं। धीरे धीरे उसकी समाध बहाल हुई तो उसे अपने इर्द गिर्द किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि इधर कोई खड़ा है। और अगले ही लम्हे एक भारी बूट की चाप उसके करीब रुकी। क्या हुआ मिरहा? डर लग रहा है मेरी जान को? गहरी खुरदुरी आवाज ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। मिरहा का दिल जोर से धड़का। वो इस आवाज को जानती थी, लेकिन यकीन नहीं कर पा रही थी। ये कैसे मुमकिन है? वो हकला गई। उस शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मास्क उतारा और रोशनी के धुंधले दायरे में उसका चेहरा नुमाया हुआ। मिरहा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखें फैल गईं और लबों से बेइख्तियार निकला, काशान भाई। वो वहीं साकित हो गई। ये वही काशान सिकंदर था जिसे सबने 3 साल पहले एक हादसे के बाद पागल तस्लीम कर लिया था, जिसे दुनिया ने भुला दिया था। लेकिन आज वो उसके सामने था और उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। ये कैसे हो सकता है? आप तो... मिरहा की जबान लड़खड़ा गई। काशान के लबों पर धीमी मुस्कुराहट उभी। तुम्हें लगता था मैं वाकई पागल हूं? मिरहा का जिस्म लरजने लगा। नहीं मिरहा, मैं पागल नहीं था। मैंने सिर्फ दुनिया को यही यकीन दिलाया था। वो उसके करीब आकर बोला, आंखों में एक चमक लिए। और तुम जानती हो क्यों? मिरहा ने नफी में सर हिलाया। आंखों में बेयकीनी थी। काशान ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर मध्यम आवाज में बोला, क्योंकि मुझे तुम्हारे पूरे खानदान से बदला लेना था। काशान ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखों में ऐसी वहशत और बेरहमी थी कि मिरहा की आवाज गले में ही अटक गई। लेकिन फिर हिम्मत जमा करके उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कैसा बदला? मिरहा पर जैसे सख्ता तारी हो गया जब काशान ने कहा, मैं अपने वालिदैन की मौत का बदला लेने आया हूं। काशान ने उसकी तरफ देखा और तल्ख लहजे में बोला, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिदैन किसी हादसे में नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था, और वो भी किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने खानदान वालों ने। मिरहा खौफजदा नजरों से काशान को देख रही थी, जबकि वो अपनी कहानी सुनाने लगा।
میرے والد تمہارے دادا کے سوتیلے بیٹے تھے جنہیں انہوں نے کبھی اپنایا ہی نہیں. ہمیشہ انہیں ملازموں کی طرح رکھا، ان کی عزت نہیں کی. مگر میرے بابا نے پھر بھی صبر کیا. وہ ان کی تلخ باتیں خاموشی سے سنتے اور ایک لفظ بھی نہ کہتے. کاشان کی آواز غصے اور درد سے بوجھل تھی. یہی نفرت انہوں نے اپنے بیٹوں یعنی ہمدانی صاحب اور مصطفیٰ صاحب کے دل میں بھی ڈال دی. وہ میرے والد کو ایک بوجھ سمجھتے تھے. جب بزنس کی بات آئی تو دادا جان نے ساری جائیداد اور کاروبار تمہارے والد اور چچا کے نام کر دیا. حالانکہ میرے بابا نے اسے اپنے خون پسینے سے کھڑا کیا تھا. مگر بدلے میں انہیں کیا ملا؟ دھوکہ. مرہا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن کاشان کے چہرے پر صرف نفرت تھی. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر میرے والد کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. میری ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور چند ماہ بعد ہی یہ دنیا چھوڑ گئی. پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے مجھے اور میرے بھائی کو اپنے گھر میں رکھا اور سنبھالا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے. کاشان نے ایک سر داہ بھری، پھر بولنے لگا. جب جب میں ان سب کو دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے. میرا دل چاہتا تھا کہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں، مگر میں نے صبر کیا، موقع کی تلاش میں رہا. جب میرے چھوٹے بھائی شایان نے انٹر مکمل کیا تو میں نے اسے فوراً ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جائے. خود میں ان سب پر نظر رکھنے لگا. پھر میرا ایکسیڈنٹ ہوا جو کسی کی چال تھی. مگر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہارے باپ کو اچانک مجھ سے اتنا پیار کیوں جاگ گیا. وہ کیوں مجھے پاگل خانے بھیجنے کے بجائے میرا خیال رکھ رہے تھے؟ مرہا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا. شاید میرے بابا اس سازش میں شامل نہ ہوں. شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو. یہ سن کر کاشان کا پارا چڑھ گیا. اس نے تیز نظروں سے مرہا کو گھورا. تم ان کی حمایت کرو گی کیونکہ وہ تمہارے باپ ہیں، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے والدین کو کھو دیا. اس کا کیا؟ مرہا خاموش تھی، مگر کاشان بولتا چلا گیا. جب مجھے پاگل سمجھ کر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تم واحد تھیں جو میرا خیال رکھتی تھیں، میری ہر ضرورت پوری کرتی تھیں. تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ صرف تم ہوگی. میں تم سے محبت کرنے لگا مرہا. مرہا کا رنگ فک ہو گیا. وہ بے یقینی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ مسلسل کہہ رہا تھا. جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا رشتہ میرے بھائی سے طے ہو گیا ہے تو میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اغوا کروا لیا. مرہا کا دل دہل گیا. کیا؟ کاشان نے بے رحمی سے ہنستے ہوئے کہا. اس دن جب تم اسپتال سے نکلی تھی میں نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے تمہیں اٹھوا لیا تھا. اب تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا. مرہا نے تڑپ کر کہا. نہیں کاشان بھائی، پلیز ایسا مت کریں. میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے بھائی کی طرح سمجھا ہے. میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا. کاشان نے کہا لگایا. شادی سے پہلے ہر لڑکی یہی کہتی ہے، مگر ہمارا کوئی بہن بھائی والا رشتہ نہیں ہے. مرہا، اب یہ فضول باتیں بند کرو اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہاری پوری فیملی کو ختم کرنے میں. یہ سب سن کر مرہا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی. وہ جانتی تھی کہ جو شخص 3 سال تک پاگل ہونے کا ڈرامہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا. مرہا نے بے بسی سے کاشان کی طرف دیکھا اور چپ چاپ نکاح کے لیے حامی بھر لی، اور کچھ ہی دیر میں دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کاشان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ مرہا کو اس کے خفیہ گھر میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ وہ اپنی منزل کے بہت قریب تھا اور بدلہ لیے بغیر اپنی اصلیت سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا اور خود دوبارہ اسی اسپیشل سینٹر میں چلا گیا.
वहां पहुंचकर उसने किसी को फोन किया और सारी बात समझा दी। दूसरी तरफ से ना जाने क्या क्या कहा गया कि काशान के लबों पर मुस्कुराहट उभरी। उसने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर उसने मोबाइल छुपा लिया और खुद सुकून से आंखें बंद कर ली। चंद दिन बाद दोबारा से उसे फोन आया। उसने नंबर देखते ही कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, काम हो गया। ये सुनते ही काशान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। बहुत खूब, तुम्हारा इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबके सामने आना होगा। उसके बाद काशान सीधा मिरहा के पास गया और उसे साथ लेकर घर पहुंचा। उसे काशान के साथ देखकर सब लोग हैरान रह गए। किसी ने फौरन सवाल किया, इतने दिन तुम कहाँ थी और ये काशान के साथ क्या कर रही हो? काशान ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, रिलैक्स, पहले हमें आराम से बैठने तो दो, कोई पानी शानी पिलाओ, फिर सब बताता हूं कि ये कहाँ थी और मेरे साथ क्या कर रही है। ये सुनकर नौरीन और सादिया बेगम के चेहरे पर नागवारी फैल गई, लेकिन मजबूरी में उन्हें पानी लाना पड़ा। काशान ने सबकी तरफ देखा और एकदम संजीदा होकर कहा, अब तुम लोग फौरन मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनकर सभी चौंक गए। मिरहा समेत सब लोग हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। काशान ने खामोशी से कुछ कागजात सबके सामने रख दिए और कहा, ये देखो, ये घर, ये बिजनेस जिसके लिए तुम लोगों ने मेरे बाबा को कत्ल किया था, ये सब कुछ अब मेरा और मेरे भाई का है, इसलिए अब तुम लोग यहां नहीं रह सकते, निकलो यहां से। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमदानी साहब ने आगे बढ़कर कहा, ये सब क्या है काशान? हमने तुम्हारे वालिद को नहीं मारा। काशान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और तल्खी से कहा, मुझे सब पता है, मैं बचपन से सब देखता आया हूं और एक दिन मुझे यकीन हो गया जब मैं पागल बना हुआ था और तुम्हारी बीवी सादिया और नौरीन आपस में बात कर रही थी कि जैसे इसके बाप को रास्ते से हटाया इसी तरह इसे भी हटा देंगे। तो इसका क्या मतलब समझूं मैं? नौरीन ने गुस्से में कहा, बाप के जैसे ही धोखेबाज निकले। ये सुनना था कि काशान धाड़ उठा, खबरदार, अगर मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे बड़ी हो। सब लिहाज एक तरफ रखकर तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। काशान को इतने गुस्से में देखकर नौरीन बेगम घबराकर पीछे हट गईं। हमदानी साहब ने संजीदगी से कहा, बेटा, हम पहले ही अपने गुनाह पर बहुत पछता रहे हैं, इसीलिए तो तुम दोनों को अपने घर में रखा ताकि कुछ कफारा अदा हो सके। प्लीज हमारे साथ ये सब मत करो, हमें माफ कर दो। काशान ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, जब मेरे वालिद से सब कुछ छीन कर उन्हें मार दिया तब रहम नहीं आया था ना, तो अब मुझे भी तुम पर कोई रहम नहीं आ रहा। मैं कल दोबारा आऊंगा और मुझे ये घर खाली चाहिए। चलो मिरहा। जैसे ही वो मिरहा को ले जाने लगा तो नौरीन बेगम आगे बढ़कर बोली, मिरहा हमारे साथ रहेगी, ये क्यों जाए तुम्हारे साथ? काशान मुस्कुराकर बोला, मिरहा अब मेरी बीवी है, इसीलिए तुम इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। फिर उसने मिरहा की तरफ रुख किया और सर्द लहजे में कहा, और मिरहा, अगर तुमने रुकने की कोशिश की तो अंजाम जानती हो। मिरहा ने सबकी तरफ नम आंखों से देखा, फिर बेबसी से सर झुकाकर काशान के साथ चल दी। बाकी सब पीछे खड़े बेबसी से उन्हें जाता देखते रहे। मिरहा को घर ले जाकर काशान ने उसके नम आंखों वाले चेहरे की तरफ देखा, फिर उसे अपने हिसार में लेते हुए नरम लहजे में बोला, मुझे पता है इस वक्त तुम मुझसे नफरत कर रही हो, लेकिन जरा मेरे बारे में भी तो सोचो। कैसे मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजारी, कैसे मैं अपने वालिदैन के प्यार के लिए तरसता रहा। जरा खुद को मेरी जगह रखकर सोचो। मिरहा ने कोई जवाब नहीं दिया। काशान ने उसके आंसू साफ करते हुए उसके माथे पर बोसा दिया और धीमे लहजे में कहा,
मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा और तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे घर वालों को माफ कर दूं, क्योंकि ये मैं कभी नहीं कर सकता। मिरहा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर फिर भी खामोश रही और चुपचाप बैठी रही। काशान ने एक नज़र उस पर डाली और फिर कमरे से बाहर निकल गया। वो जानता था कि इस वक्त मिरहा को समझाना मुश्किल है, लेकिन उसे यकीन था कि जब वो खुद अपने दिमाग से सोचेगी तो सब कुछ समझ जाएगी। ये सब सोचते हुए वो गाड़ी लेकर यूं ही बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा। रात देर से जब वो वापस आया तो देखा मिरहा बेड पर कंबल मुंह तक लिए सो रही थी। काशान आगे बढ़ा, खुद भी उसके बराबर लेट गया और उसे खींचकर अपने हिसार में ले लिया। मिरहा की आंखें खुल गईं। वो नींद की तलाश में थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने खुद को काशान के हिसार से निकालने की कोशिश की, लेकिन काशान ने अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी। मिरहा ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की और मज़ाहमत तर्क कर दी। उसे मालूम था कि कुछ भी हो जाए काशान उसे छोड़ने वाला नहीं। वो करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह सबसे पहले काशान की आंख खुली। उसने मिरहा को बुलाया और बोला, जल्दी उठो, नाश्ता बना दो, किचन में सब कुछ रखा है, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मिरहा चुपचाप उठी। फ्रेश होने के बाद उसने नाश्ता तैयार किया और टेबल पर लगा दिया। वो खुद कमरे में जाने लगी थी कि काशान ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने बराबर वाली कुर्सी पर बैठा दिया और सख्त लहजे में बोला, चुपचाप नाश्ता करो, ज्यादा सोग मनाने की जरूरत नहीं है। काशान को गुस्से में देखकर मिरहा खामोशी से नाश्ता करने लगी, जबकि काशान ने भी सुकून से नाश्ता किया और फिर काम से बाहर चला गया। काशान के जाने के बाद मिरहा ने बर्तन समेटे, किचन में रखे और फौरन बाहर की तरफ लपकी। वो यहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ वो बाहर से लॉक है। मिरहा समझ गई कि काशान किसी भी किस्म का रिस्क लेने वाला नहीं। उसे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि वो भागने की कोशिश करेगी, इसीलिए वो जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गया था। मायूसी से भरकर वो वापस आई और बेदिली से किचन समेटने लगी। फिर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ हो गई। जब दोपहर को काशान घर लौटा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका छोटा भाई शायान भी था। शायान को देखकर मिरहा हैरान रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं और अपने काम में मसरूफ़ रही। काशान ने पहले शायान को सब कुछ बता दिया था कि वो मिरहा को पसंद करता है। शायान को पाकिस्तान आए भी काफ़ी अरसा हो चुका था और वो शुरू से ही काशान के प्लान में शामिल था। उसी ने काशान के आदमियों के साथ मिलकर मिरहा को अगवा करवाया था और फिर खुद अंडरग्राउंड हो गया ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि वो पाकिस्तान में है। वही था जिसने सब कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए अपना चेहरा छुपाकर काशान के आदमियों के साथ मंसूबाबंदी की थी। अब जब काशान को लगा कि मामला ठंडा हो गया है तो वो शायान को अपने घर साथ ले आया। मिरहा का रवैया देखकर शायान ने काशान की तरफ देखा और बोला, लगता है मिरहा काफ़ी नाराज़ है। काशान ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नाराज़ तो होगी ही, आखिर मैंने उसके घर वालों को दरबदर किया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम जाओ और आराम करो। ये कहकर काशान भी एक नज़र मिरहा को देखता अपने कमरे में चला गया। मिरहा ने लंच के लिए दोनों भाइयों को बुलाया और तीनों ने खामोशी से लंच किया। लंच के बाद जब काशान अपने कमरे में गया तो मिरहा भी उसके पीछे आ गई। वो उसके करीब जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ मरोड़ने लगी। काशान ने गौर से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? जो कहना है सीधे से कहो। मिरहा ने हिम्मत जुटाते डरते डरते कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे घर वालों को उस घर से ना निकालें तो क्या आप मान जाएंगे?
काशान ने उसकी तरफ देखा और सख्ती से कहा, हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये सुनते ही मिरहा काशान के पैरों में बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, प्लीज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं कभी आपसे उन्हें माफ करने या उनसे मिलने की जिद नहीं करूंगी। बस मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि आप उन्हें उस घर से मत निकालें। वो लोग कहाँ जाएंगे? आपने उनका सारा बिजनेस भी अपने कब्जे में ले लिया है। मिरहा को यूं अपने पैरों में बैठा देखकर काशान से बर्दाश्त न हुआ। उसने नरमी से उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और अपने बराबर में बिठा लिया। फिर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। मिरहा ने जल्दी से सर हिलाया और कहा, बस एक रिक्वेस्ट और है। काशान ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, अब क्या है? मिरहा ने डरते हुए कहा, अगर मैं कभी कभार उनसे मिलने जाऊं तो क्या आपको एतराज होगा? ये सुनते ही काशान के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो सख्त लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुमने उनसे मिलने का सोचा भी तो जो छत मैं उन्हें दे रहा हूं वो भी नहीं दूंगा। मिरहा ने फौरन सर को हिलाकर कहा, नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगी। बस प्लीज आप उन्हें घर से मत निकालें। काशान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है। ये कहकर वो अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि मिरहा भी कुछ हद तक मुतमईन हो गई। उसने अपने दिल को तसल्ली दी कि अभी के लिए तो घर के हक में उसे मना लिया है, उनसे मिलने का मुतालबा फिर कभी कर लूंगी। ये सोचकर वो भी काम में मसरूफ हो गई। दिन यूं ही तेजी से गुजर रहे थे। शायान और काशान ने मिलकर सारा बिजनेस संभाल लिया था और वो अपनी आंखों से अपने वालिदैन के कातिलों को बेबसी की जिंदगी गुजारते देख रहे थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। वो तकरीबन सड़क पर आ गए थे। काशान और शायान के दिल को जैसे सुकून मिल रहा था, लेकिन काशान मिरहा का मायूस और बुझा हुआ चेहरा नहीं देख सकता था। इस मामले में वो कुछ भी करने से कासिर था, क्योंकि मिरहा की खुशी सिर्फ अपने रिश्तेदारों से मिलने में थी और वो उसे ऐसा कभी नहीं करने दे सकता था। वही लोग जिनसे मिरहा की खुशियां जुड़ी थीं, काशान के सारे दुखों की जड़ थे। इसीलिए उसने उनकी बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। लेकिन मिरहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था और वो हर वक्त अपने वालिदैन को याद करती रहती थी। एक दिन काशान जब घर आया तो मिरहा को रोता हुआ पाया। उसे यूं टूटा हुआ देखकर वो उसके पास आया और कदरे सख्त लहजे में बोला, कब तक रोती रहोगी? अब बस भी करो। मिरहा ने शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और नम आवाज में बोली, आप भी तो इसी दर्द से गुजरे हैं ना? आपने खुद कहा था कि बचपन से अपने वालिदैन के प्यार को तरस रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों तरसा रहे हैं? मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूं कि कभी कभार मुझे अपने वालिदैन से मिलने दिया जाए। इतना सख्त दिल ना बने, कुछ तो मेरे बारे में सोचें। मैं कौन सा रोज रोज मिलने का कह रही हूं, सिर्फ 1-2 माह में एक बार। उसकी बात सुनकर काशान खामोश हो गया। वो बिना कुछ कहे टेरेस पर आ गया और वहां आहिस्ता आहिस्ता टहलने लगा। कुछ देर बाद शायान भी उसके पास आ गया। भाई, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, शायान ने पूछा। काशान ने उसे मिरहा की बात के बारे में बताया तो शायान सोचते हुए बोला, वैसे मिरहा बिल्कुल सही कह रही है, आप उसे मिलने की इजाजत दे दें। काशान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये तुम कह रहे हो? शायान ने संजीदगी से कहा, हाँ भाई, इन सब में उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। वो तो पहले ही दूसरों की परेशानियों पर परेशान होने वाली लड़की है और ये तो उसकी अपनी तकलीफ है। आप खुद देख रहे हैं वो कैसे दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, बिल्कुल नढाल हो गई है। आप उसके साथ इतना जुल्म मत करें। काशान ने अपने भाई की बात पर गौर किया, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं उससे कह देता हूं कि कल जाकर अपने वालिदैन से मिल सकती है, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं।
ये कहकर वो कमरे में चला गया जहां मिरहा अभी भी रो रही थी। काशान ने आगे बढ़कर उसे चुप करवाया और नरमी से कहा, ठीक है, कल तुम अपने वालिदैन से मिलने जा सकती हो, लेकिन याद रखना सिर्फ 1 घंटे के लिए। और अगर तुमने किसी किस्म की चालाकी या होशियारी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर दोबारा मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। मिरहा ने जल्दी से आंसू पोंछे और सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस एक बार मिलने दें। काशान ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा, फिर सर झटक कर बाहर निकल गया। मिरहा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन साथ ही खौफ भी था। फिर भी वो इस बात पर खुश थी कि कम से कम उसे मिलने तो दिया जा रहा है। अगले ही दिन काशान उसे हवेली लेकर पहुंचा, लेकिन वो खुद बाहर से ही वापस चला गया। जाते हुए उसने कहा, 1 घंटे बाद आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मिरहा ने सर हिलाते कहा, ठीक है, और अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर पहुंची, सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी मां तेजी से आगे बढ़ी और उसे गले लगाकर रोते हुए बोली, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? काशान तुम्हें तंग तो नहीं करता? मिरहा ने नरमी से जवाब दिया, नहीं अम्मी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। उन्हें बस आप लोगों पर गुस्सा है, जो कुछ आप लोगों ने किया। मिरहा की बात सुनकर सबने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुस्तफ़ा और हमदानी साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा, वाकई हमने उसके साथ बहुत बुरा किया, ये सब माफ़ी के काबिल नहीं है। अभी ये बातें हो रही थी कि मिरहा के मोबाइल पर काशान की कॉल आ गई। जैसे ही उसने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से काशान की आवाज़ आई, मैं बाहर खड़ा हूं, जल्दी आ जाओ। मिरहा ने सबकी तरफ देखा और कहा, अब मैं चलती हूं, काशान बाहर खड़े हैं, वो मुझे लेने आए हैं। ये सुनकर सब उसके साथ बाहर आ गए। काशान ने सबको देखा मगर नजरें फेर लीं और संजीदगी से कहा, मिरहा जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे देर हो रही है। लेकिन मुस्तफ़ा और हमदानी साहब उसकी गाड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और इल्तिजा करने लगे, बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, अगर चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम अपना जुर्म कबूल करते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमारे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है जो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी आंखों में आंसू थे। काशान ने उनकी नदामत भरे चेहरे तो देखे, एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर गहरी सांस भरकर गाड़ी से निकला। उसने उन्हें सड़क से उठाया और कहा, ठीक है, आप लोग वाकई शर्मिंदा लग रहे हैं और गलतियां तो खुदा भी माफ़ कर देता है, तो मैं क्या चीज़ हूं? मैं आप सबको माफ़ करता हूं। ये सुनकर सब खुश हो गए और काशान को गले लगा लिया। फिर उन्होंने कहा, चलो अब हवेली चलो। काशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है। उन्होंने इसरार किया, तुम हवेली में क्यों नहीं रह लेते? काशान ने नफ़ी में सर हिलाते कहा, नहीं, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, बस कभी कभार मिरहा को आपसे मिलवाने ले आया करूँगा। ये कहकर वो मिरहा को लेकर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही मिरहा कमरे में दाखिल हुई, वो तेजी से काशान के सीने से लगकर रोने लगी। काशान ने उसे अपने हिसार में लिया और नरमी से पूछा, अब क्या हुआ? मैंने सबको माफ़ भी कर दिया और सुलह भी हो गई, फिर? मिरहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशी के आंसू हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे घर वालों को माफ़ कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूं। काशान ने प्यार से उसके सर पर बोसा दिया और नरमी से कहा, मेरी जान, तुम खुश तो मैं भी खुश। ये कहते हुए वो मुस्कुराया और मिरहा ने भी मुस्कुराकर सर झुका लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।